ठीक है। लोकस एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਸ दसी हुई है, छोटी जी इंट्रोडक्शन तो अपनी हुई भी है लोकस बारे। लोकस की होंदा दैट इज अ पाथ traced by a point when moved under certain set of conditions। ठीक है, अगर किसी पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ certain set of conditions ਦੇ ਅੰਦਰ मूव करवावांगे ਜਿਹੜਾ ਉਹ path trace ਕਰੇਗਾ that path will be called its locus। तो लोकस एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਪਾਥ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ that thing will be called locus। तो path traced by a point when moved under certain set of conditions that point will be called that path will be called its locus। ठीक है, for example मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि there are 2 points 2,3 and 4,5। find locus of a point which is always equidistant from both the points। find the locus of a point which is always equidistant from both the points। a point which is always equidistant from both की होएगा, सब तो पहला तो उन्होंने की हो जाएगा मिड पॉइंट। सेकंड अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड मूव कर जा then also this point will also be equidistant from both। अगर मैं होर वर्टिकली अपवर्ड मूव करा तो ये वाला पॉइंट भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा, ये वाला पॉइंट भी फॉलो कर रहा, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी कर रहा। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ज्वाइन कर लूँगा ਇਹਨਾਂ पॉइंट्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ लाइन निकल के आएगी that line will be perpendicular bisector of AB। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट B है, तो ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ locus of point which is always equidistant from A and B will be की होएगा वो perpendicular bisector of AB। that will be the perpendicular bisector of AB। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਲੈਟ दैट ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ h, k। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ h, k ਦਾ a ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ एंड h, k ਦਾ b ਤੋਂ डिस्टेंस हमेशा की रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। वट विल बी डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम h, k h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर एंड इहदा अंडर रूट दैट शुड बी इक्वल्स टू h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर एंड पूरे दा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट गए h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। की कैंसिल हो रहा है h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 8h कितना आ गया 4h माइनस 6k प्लस 10k प्लस 4k 4 प्लस 9 13 16 plus 25 16 40 41 minus 13 28। तो this will be minus 20 equals to 0। तो h plus k minus 7 equals to 0। ये ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਪਾਥ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ h, k ट्रेस करेगा ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ that should be always equidistant from A and B। ਹੁਣ ਇਨ ਜਨਰਲ h ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, x ਨੂੰ, k ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ y ਨੂੰ। तो this could be changed to x plus y minus 7 equals to 0। this is also the equation of perpendicular bisector of A। this is the equation of perpendicular bisector of A। करना की है तुसी, एक पॉइंट होएगा जिहदा आपां लोकस फाइंड आउट करना, उस पॉइंट नूं मतलब वर्किंग रूल भी लिख दिंदे आपां। वर्किंग रूल की होएगा अपना हमेशा लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी h, k। ठीक है, पुट h, k इन द कंडीशन गिवन। कोई ना कोई एक तुहानू कंडीशन गिवन होएगी जिहदे विच दोनों h ते k जाके बैठ जाएंगे, होर उहदे च कुछ नहीं होएगा। सिंपली रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, और कुछ भी नहीं करना। आपां ये 3 स्टैप्स फॉलो करांगे तुहानू लोकस मिल जाना।
Okay, another example could be locus of point always equidistant from या always at a constant distance of 3 units from 2 comma 3। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, locus of a point which is always at a constant distance of 3 units from 2 comma 3। locus of a point ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, let that point be h comma k। now h comma k should always be at the distance of 2 comma 3 from should be at the distance of 3 units from 2 comma 3। तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ h minus 2 the whole square plus k minus 3 whole square under the root should be equals to 3। so h square plus 4 minus 4h plus k square plus 9 minus 6k is equals to 9। 9 और 9 cancel, बन गई इक्वेशन अपने को। नाउ रिप्लेस h by x and k by y। तो की आ जाएगा x square plus y square minus 4x minus 6y plus 4 equals to 0। So this is the required locus of the point h comma k such that it is always at a distance of 3 units from 2 comma 3। उन्हें इक्वेशन निकल के किदी आई है सर्कल with center at 2 comma 3 and radius equals to 3। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ h, k ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ that should always be at the distance of 3 from 2 3, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 2 3 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ h, k ਬਿਠਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 to 4 ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਸ ਲਿਖਣ ਦਾ, h, k ਪੁਆਇੰਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਰਿਪਲੇਸ h by x and k by y, ਸਿੰਪਲ ਆਂਸਰ। ਆਈ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਫਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੋਕਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ICSE ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ भी चारों कहानी नहीं चल रही, लिखना पैना। ठीक है, नोट करो इन्हों, ब्रीफली नोट कर लिया करो, बड़ी चीज़ां लिखनियां पैनियां। अर्शन एक दिन मैं गया, मैं तू आया नहीं, 2-3 दिन लैक्चर देख ले सी, कर ले सी कहना, हाँ ही मैं सुन ले सी कहना, मैं कहा इतने सुन ले तो ही पता लग गया भी हाँ की समझ लिया होगा तू अच्छो की नहीं। लेकिन जिदा हो गया वो लिख लियो क्वेश्चन। फाइंड locus of point such that its distance from origin is always twice its distance from y-axis। Find the locus of a point such that its distance from origin is always twice its distance from y-axis। ठीक है, पहला करो नोट,
ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆंसर, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਕਰਨ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। Find locus of point P such that PA 3 times PA equals to 2 times PB if A is equals to 0, 0, 4, 3. Find locus of point P such that PA minus PB is always equals to 3. B is equals to minus 3, 0 is equals to 4. ठीक है, हो गया नोट है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, पहला तो कोई पॉइंट बना लो एच कॉमा के दा ओरिजिन तो डिस्टेंस आपां नूं पता ही है कितना हुंदा, एच कॉमा के दा ओरिजिन तो डिस्टेंस कितना हुंदा, एच कॉमा के दा ओरिजिन तो डिस्टेंस कितना हुंदा। हाँ, की होंदा डिस्टेंस फार्मूला ला के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर द रूट। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज डिस्टेंस ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एच कॉमा के दा वाई एक्सिस तो डिस्टेंस कितना हुंदा एच। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू find the locus of point P such that PA minus PB mod is always equals to 4 units if A is equals to 3, 0 and B is equals to minus 3, 0. ठीक है, बस सिंपल ਆਪਾਂ दोनों चीज़ां पता लग जानियां। जिवें क्वेश्चन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, की कह रहे हैं एच कॉमा के सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ एच कॉमा के फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर द अंडर रूट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट है एच कॉमा के दा वाई एक्सिस तो डिस्टेंस कितना होएगा हमेशा एच, ते एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस कितना होएगा के, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एच। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। सो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंपल है। कंडीशन बनाई, कंडीशन बना के h की जगह पे x रखता, k की जगह पे आपां y रखता। देखिए इधर उन्होंने क्या लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, h कॉमा k दा ओरिजिन तो डिस्टेंस कितना हुंदा आ वाला हुंदा ना d कितना हुंदा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अंडर द रूट।
दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एच कॉमा के दा वाई एक्सिस का डिस्टेंस आही हुंदा ठीक है ये कितना होता है एच तो दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एच ठीक है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कीता इक्वेशन बनाई आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 find the locus of a point P such that PA 3 times PA is equals to 2 times PB if A is this B is this 3 times PA is equals to 2 times PB P ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ let P be H, K तो 3 times PA कितना हो जाएगा h square plus k square the under root is equals to 2 times कितना हो जाएगा ये h minus 4 whole square plus k minus 3 whole square ठीक है squaring both sides 9h square plus k square is equals to 4h minus 4 whole square plus k minus 3 whole square ठीक है बस इन्हों थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करके h की जगह पे x रख देंगे k की जगह पे अपन इत्थे y रख देंगे ठीक है ना सिंपल तो आगे तो तक सेकंड क्वेश्चन तक ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट PA minus PB is equals to 4 यूनिट्स ठीक है A is equals to 3,0 B equals to minus 3,0 मान लो कि P की है H, K तो H minus 3 whole square plus K square the under root is equal minus h plus 3 whole square plus k square the under root that mod should always be equals to 4 ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਭਜਾਉਣਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 4 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ h minus 3 the whole square plus k square the under root will be equals to 4 plus h plus 3 the whole square plus k square the under ठीक है now squaring both sides h minus 3 the whole square plus k square is equals to 16 plus h plus 3 the whole square plus k square plus 8 times under root of h plus 3 the whole square plus k square ठीक स्क्वेयरिंग करनी है फिर तो कोई फर्क नहीं ना ठीक है स्क्वेयरिंग ही करनी है अपन k square cancelled this thing will be h square plus 9 minus 6h this thing will be h square plus 9 plus 6h h square cancelled 9 cancelled बचा कि अपने को इकल्ला इत्थे minus 6h ते इधर की बचा अपने को 6h plus 16 तो इधर आके कितना हो गया हो minus 12h minus 16 is equals to 8 times under root of h plus 3 whole square plus k square now squaring both sides again under root बच गया गायब सिंपल ठीक है ये 8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इधर कैंसिल करोगे ਤਾਂ या 4 ਨਾਲ कर दो कैंसिल एक कितना आ जाएगा 2 ये कितना आ जाएगा 3 ये कितना आ जाएगा 4 एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ठीक है अंडर रूट चला जाएगा सिंपल पुट x इक्वल्स टू x k इक्वल्स टू y आंसर ओके ठीक है लिख लो इन्हां नूं अगे क्वेश्चन लिखो फिर नाल ही ठीक है लिख लो क्वेश्चन लिख लो अगे ends of hypotenuse of a right angled triangle are 6, 0 and 0,6 sorry 6, 0 and 0,6 find the locus of third vertex find the locus of third vertex ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ends of hypotenuse of a right angled triangle are 6, 0 and 0,6 find the locus of third vertex
थर्ड वर्टेक्स का लोकस फाइंड आउट करना, तो सब तो पहला तो थर्ड वर्टेक्स ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ h, k। बस ਆਪਾਂ पूरे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ h एंड k दोनों बैठे होਣ, खत्म। इन्ना ही काम करना ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ कुछ भी नहीं गा। ठीक है, की करते हैं, दिस इज 0,6 6,0। ट्राइंगल कुछ एवें दा दिखेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, लेट दिस बी ए बी सी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ h, k। कंडीशन की होंगी है राइट एंगल के ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल के हजे तक आप स्लोप नहीं पढ़ी, तो आप उस पॉइंट पर नहीं जाते। पाइथागोरस थ्योरम की कहती है आपको, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की आएगा अपने को, बेस की लेंथ कितनी आएगी, ये वाली h स्क्वायर प्लस k माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, बस ये एच की जगह पे एक्स रख देंगे आप, के की जगह पे वाई। एट द एंड कुछ भी नहीं करना, आप एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिदे एच एंड के दोनों बैठे हो, दोनों आप थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करांगे, सिंपलीफाई करके आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इवें नहीं आऊगा कि फाइंड आउट द लोकस, तो ये पूछेंगे कि लोकस ऑफ दिस इज वट, कोई सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला। वो आपको जिमें जिमें अगे जावांगे आपको पता लगती जाऊगी आइडेंटिफिकेशन कि किहड़ी इक्वेशन हाइपरबोला बनती है, किहड़ी एलिप्स बनती है, किहड़ी पैराबोला। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए भी लोकस लिखना किवें है। फिर आप आइडेंटिफाई करना सीखांगे कि जिहड़ी लाइन आई, जिवें ए वाली आई सी, ये आपको शेड दिखता कि लाइन होएगी। ठीक है, बट अगर डिग्रीज वेरी करन लग पईयां, ये है जिवें ये सर्कल होएगी, हाइपरबोला भी बन सकता, पैराबोला भी बन सकता, अकॉर्डिंगली चलती। ठीक है, लिख लो, इन्हें एक बार कंप्लीट कर लो, इतों 1 मिनट दो मैंने। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लिखो जल्दी अगला क्वेश्चन। A stick of length L rest against a wall. A stick of length L rest against wall and floor. Wall and floor. If stick starts sliding down, find locus of its midpoint. Find locus of its mid। ठीक है, जिवें लैडर लगी हुंदी है, पौड़ी लगी हुंदी है कंध दे नाल ते फ्लोर दे नाल, मान लो कि इवें स्टिक खड़ी है दीवार दे नाल इस तरीके नाल, ते वो स्टिक की है वो स्लाइड करना शुरू किया उन्हें। अगर इधर नूं स्लाइड कर रही है नीचे वाल नूं, तो उपरों भी नीचे वाल नूं आ रही होएगी, ਉਹਦੇ मिड पॉइंट की लोकस होएगा, वट विल बी द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट, ये फाइंड आउट करना। करो ट्राई। लेट द मिड पॉइंट भी h, k, सिंपल। ठीक है, लेट द मिड पॉइंट भी h, k, बस h, k नूं आपां किसी इक्वेशन च फिट करना। हिंट की है आपां नूं, हिंट ये है भी हाँ फ्लोर ते जिहड़ा वॉल है ते जिहड़ा फ्लोर है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, उत्थों मतलब आपां नूं पता लग गया कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिल जूगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो मतलब आप कुछ लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम टाइप कुछ लगा सकते हैं, सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता। ठीक है ना, हो जी। स्टिक का मिड पॉइंट, स्टिक का मिड पॉइंट, उसकी लेंथ एल है और उसका मिड पॉइंट। ठीक है, आ गया।
देखो होर छोटा जा हिंट एक, ठीक है, इवें है कोई इस एंड ने इधर ਨੂੰ मूव करना स्टार्ट कर देना, जिवें ये वाला एंड इधर ਨੂੰ स्टार्ट करेगा मूव करना, ऊपर वाला एंड नीचे ਨੂੰ आना शुरू हो जाएगा। इसकी लेंथ की है अपने को L, let h comma k be its midpoint, let h comma k be its midpoint, ठीक है। let this point be alpha comma 0, अल्फा कॉमा 0 ही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। let this point be 0 comma बीटा, तो अपन ਨੂੰ पता कि अल्फा प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू h, बीटा प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2h, बीटा इज इक्वल्स टू 2k, and we know that if this is alpha comma 0 तो this length will be alpha, if this is 0 comma beta तो ये कितना हो जाएगा बीटा, and we know that alpha square plus beta square is equals to L square. what is alpha? 2h whole square plus 2k whole square is equals to L square, so 4h square plus 4k square is equals to L square. तो replace h by x equals to L square. This will be the required answer. ठीक है, 4x square plus 4y square is equals to L square. सिंपल है ना, कीता कुछ भी नहीं, आप बस एक इक्वेशन बनानी है जिहदे विच h एंड k दोनों आ जान, आप h ਨੂੰ रिप्लेस करना होगा x ਦੇ ਨਾਲ, k ਨੂੰ रिप्लेस करना होगा y ਦੇ ਨਾਲ। आई समझ के नहीं? ठीक है, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OA and OB are two perpendicular straight lines. OA and OB are two perpendicular straight lines. A straight line AB is drawn. A straight line AB is drawn such that OA plus OB is equals to 8. Find the locus of midpoint of AB. Find locus of midpoint of AB. करो ट्राई, लगाओ दिमाग, जो भी हो सकता। OA and OB are two straight lines, का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेने हैं, एक ਨੂੰ x एक्सिस बना देने, एक ਨੂੰ y एक्सिस बना देने। this is O, this is A, this is B. Straight lines line AB is drawn such that OA plus OB is 8. OA plus OB is 8. Find the locus of midpoint of AB. Let that midpoint be h comma k. करो ट्राई। ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ h, k ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ।
सिंपल जा कंसैप्ट की होएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर है, तो जिहड़ा ए वाला पॉइंट है ये की है AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। वो भी चलते हैं आप, लेट दिस पॉइंट बी अल्फा कॉमा 0, लेट दिस पॉइंट बी 0 कॉमा बीटा। अगर ये अल्फा कॉमा 0 है 0 कॉमा बीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी अल्फा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन इक्वल्स टू 8, तो बीटा कितना हो जाएगा अपने को 8 माइनस अल्फा, तो दिस थिंग इज 0 कॉमा 8 माइनस अल्फा एंड दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा 0, ठीक है। बस हो गया कि नहीं, ठीक है, दिख गया आंसर है। हाँ लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ बस वो वाला पॉइंट ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ध्यान नाल ये क्वेश्चन जो थोड़े जे होर सिंपल हो जाएंगे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਲੋਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਲੋਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਲੋਪਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੈਰਲਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। एक क्वेश्चन हो रहा था लास्ट, the ends of a rod, the ends of a rod, the ends of rod of length L, ठीक है। एक रॉड है जिसकी लेंथ की है L, the ends of rod of length L move on two mutually perpendicular lines, moves on two perpendicular lines, ठीक है। मतलब ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਕ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। find the locus of point on the rod, find locus of point on the rod which divides rod in the ratio of 2:1, which divides rod in the ratio of 2:1। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਲਦੀ। This length is L, let there be any point h comma k, h comma k is dividing it in the ratio of 2:1, let this be alpha comma 0, let this be 0 comma beta, so 2 alpha plus 0 upon 2 plus 1 is equals to h, 2 into 0 plus beta upon 2 plus 1 is equals to k। h and k ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, and we know that alpha square plus beta square is equals to L square।
इथों अल्फा की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, इथों बीटा की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, आंसर है। ठीक है, पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया सी, डायरैक्टली होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, ए पॉइंट की है ए कॉस टी कॉमा ए साइन टी, ए कॉस टी कॉमा ए साइन टी, बी साइन टी कॉमा माइनस बी कॉस टी, बी साइन टी कॉमा माइनस बी कॉस टी, एंड थर्ड पॉइंट इज 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0। फाइंड locus of centroid of triangle ABC, find the locus of centroid of triangle ABC। सेंट्रॉयड की हुंदा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, फाइंड आउट किवें करीदा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो आप सेंट्रॉयड का लोकस फाइंड आउट करना, तो लेट द सेंट्रॉयड बी h कॉमा k। देखो इधर एक बार ध्यान नाल, लेट द सेंट्रॉयड बी h कॉमा k, नो व्हाट विल बी h की हो जाएगा अपने को a cos t प्लस b sin t प्लस 1 अपॉन 3, एंड व्हाट विल बी k विल बी a sin t माइनस b cos t बाय 3। ਹੁਣ मैं की करना है कि ऐसी इक्वेशन बनानी है जिहदे विच की करिए एच एंड के दोनों फिट हो जान उत्थे। तो नॉर्मली ट्रिग्नोमैट्री दे विच इहो जी इक्वेशन जिहदे विच आपां नूं एच एंड के दोनों नूं फिट करना होवे वो हुंदा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई ओहो जी फॉर्म बना लो, ऑटोमैटिकली इन्हां सारिਆਂ ने गायब हो जाना, उत्थे बचेगा अपने कोले कल्ला एच एंड के। ठीक है, किवें करदे आपां, ये 3 नूं अगर मैं उधर लै जा तो ये बन जाएगा 3h, ये 1 नूं भी इधर लै जाइए तो की बन गया 3h माइनस 1, वो भी ये वाले 3 नूं इधर लै जाने तो ये बन गया 3k। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दे नाल की आ जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर t माइनस 2ab साइन t एंड cos t। अगर इनू स्क्वायरिंग करिए आप 3h माइनस 1 द होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस 2ab साइन t एंड cos t। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों नू की कर दिंदे आ ऐड, जदों दोनों नू ऐड करोगे ये दोनों तो गायब हो गए। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना हो गया 1, इधर तक ही आ जाएगा 3h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, अच्छा गलत लिखता थे 9, एंड इतने की आ जाएगा 9। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, पुट h इक्वल्स टू x, k इक्वल्स टू y। ठीक है, क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, इतने भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया। ठीक है, सिंपल। चलो अगे, ठीक है, चलो
ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੱਲ ਸੈਂਟਰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ, ਔਰਥੋ ਸੈਂਟਰ, ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਸੈਂਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 3। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 1 ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਇਨ ਸੈਂਟਰ। ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਟ देयर बी ट्रायंगल ABC, ए ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ A, B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ B, C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ वाली साइड C। तो if its in center is x, y, तो x की होएगा? That will be let this be x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो की होएगा a x1 plus b x2 plus c x3 upon a plus b plus c, ਤੇ y की होएगा अपने कोले a y1 plus b y2 plus c y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक ही आ जाते अपने को इन सेंटर का फॉर्मूला आ जाता। यही 2 फॉर्मूलाज आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो। इस तो बाद आप कुछ याद रखने की भी कोशिश नहीं करनी, ठीक है। ਹੁਣ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਚ ਜੀ ਓ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। HGO they always lie in a straight line and G divides the line joining H and O in the ratio of 2:1। हमेशा हमेशा की होएगा? G divides the line joining H and O in the ratio of 2:1। ये केड़ी रेशियो है? ये वही रेशियो है जिहदे विच सेंट्रॉयड मीडियन ਨੂੰ डिवाइड करदा, ठीक है। सेंट्रॉयड also divides median in the ratio of 2:1। Similarly centroid divides the line joining H and O in the ratio of 2:1। ਨਾਓ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਐਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ O ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਚ ਇਜ਼ ਔਰਥੋ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ O ਇਜ਼ ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? मीडियंस। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਣਗੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ 3 ਵਰਟਿਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਔਰਥੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ फाइंड आउट करो यूजिंग दिस फार्मूला, फिर 2:1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰਥੋ ਸੈਂਟਰ फाइंड आउट ਕਰੋ। ओके करिए ट्राई। एक और चीज़ मैं छोटी जी दसी सी ਤੁਹਾਨੂੰ, मान लो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰਥੋ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਟਸ ਔਰਥੋ ਸੈਂटर? B पॉइंट विल बी इट्स ऑर्थो सेंटर, बिकॉज A पॉइंट तो सिर्फ यही ऑल्टीट्यूड आ सकता, C तो सिर्फ यही ऑल्टीट्यूड आ सकता। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स की है B, तो इट्स ऑर्थो सेंटर विल सिंपली बी इक्वल्स टू B, ठीक है। देन ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ AC ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ? what will be the circum center, exact circum center of a right angled triangle? mid point of AC, ठीक है। सोचो जिवें आपां मान लो इत्थों मैं सर्कम सेंटर की हुंदा? it is a center of circle circumscribing a triangle। मान लो मैं इदा सर्कल बना दा, अगर ए एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ए एंगल 90 डिग्री सिर्फ कदों हुंदा? when AC is a diameter, because angle in a semicircle is 90 डिग्री। तो ऐसे सर्कल का सेंटर कित्थे होएगा? इस पॉइंट पे। ए पॉइंट किहड़ा होएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज
ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इट्स राइट एंगल, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ दैट इज इट्स ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर ਹੁੰਦਾ एंगल बाइसेक्टर ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट करने ਪੈਣਗੇ, ठीक है। लिख लो ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ब्रीफली नोट कर लो फिर क्वेश्चंस करते हैं। लिख लो जल्दी। जी चीज़ कल नहीं लिखी सी, ठीक है, कुछ भी जिवें आ 2 पॉइंट्स ने सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर वाले, ठीक है, ये नोट कर लो। दैन इन सेंटर का फॉर्मूला अगर कल नहीं लिखा सी तो वो वाली चीज़ नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, A, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, A, 2, B, 1, A, 2, B and C square, -3, 1, A, 2, B, C square, -3, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन एक बार ये छोटा जिहा पार्ट आया सीगा मैथ द कॉलम दे विच, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ थोड़ा जिहा होर तरह फ्रेम करते हैं। 1, A, 2, B, C square, -3, centroid of triangle ABC, this is A, this is B, this is C, will always lie on y-axis, ट्रू या फॉल्स। सेंट्रॉयड ऑफ थोड़ी शेप चेंज की है क्वेश्चन की आप 1, A, 2, B एंड C square, -3, सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ABC will always lie on y-axis, will always lie on y-axis, फॉल्स, ठीक है। दिख रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? हाँ, सेंट्रॉयड निकाल के सेंट्रॉयड आएगा कितना 1 + 2 + C square upon 3, पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस विल बी हैविंग x = 0, तो C square कितना आ गया अपने को -3, ये चीज़ कदे हो नहीं सकती, C square -3 नहीं हो सकता, तो मीन्स दिस सेंट्रॉयड कैन नॉट लाई ऑन y एक्सिस, कदे भी y एक्सिस से लाई नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, इन सेंटर का फॉर्मूला आप कर चुके हैं। If vertex of triangle be 1, 1, one of the vertex is 1, 1, मान लो एक ही है 1, 1, and midpoint of other two sides are, and midpoints of other two sides are -2, 3 एंड 5, 2, ठीक है। कोई ऐसा ट्राइंगल है अपने को ABC, एक ही अपने को 1, 1, if a vertex of the triangle be this and the midpoints of two sides through it
थ्रू 1 1 मतलब ये दोनों की आ जाएंगे -2, 3 एंड 5, 2. फाइंड सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर ऑफ दिस, फाइंड सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, कर दो। फाइंड सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल।